Structure. A detailed session on the topic will be delivered by our resource person. For this, I would like to invite Dr. Saloni Bhasin, IIC Startup Coordinator, to introduce us all with our resource person for today. Warm greetings to all present here in today's webinar under Institutions Innovation Council on Business Model Canvas. On behalf of our college, Indira Gandhi Rajkiya Mahila Mahavidyalaya, Raebareli, I welcome our resource person for today's program, Dr. Zia Afroz. We are extremely grateful to you, ma'am, for accepting our invitation as a resource person for today. Dr. Rizia Froze has been working as an assistant professor in one of the renowned College of Lucknow, Sri Guru Nanak Girls Degree College, from past 3.5 years. She completed her PhD titled An Empirical Analysis of Job Satisfaction of Women Entrepreneurs in MSMEs in Central UP from the Department of Applied Economics, Faculty of Commerce, University of Lucknow. She has qualified UGC NET JRF in 3 subjects: JRF and NET in economics, in JRF and NET in management, NET in commerce, NET in economics. Ma'am also holds BEd degree and postgraduate diploma in human resource management from IGNOU. Ma'am is an active member of Indian Commerce Association and Indian Accounting Association. She has to her credit a number of research publications related to her field. Ma'am has also been awarded with fellowships like Maulana Azad National Fellowship and Indian Council of Social Science Research. It's an honor and privilege for us, ma'am, to have you here today. I'm sure all the teachers and students will be enriched by your informative and insightful thoughts. Again, warm welcome, ma'am. I'm handing Thank the you. session over to you. Thank you. Thank you so much, Saloni ma'am. And good morning to all the faculty members and the students over here. Myself, Dr. Zia Froz, Assistant Professor, Department of Commerce from Sri Guru Nanak Girls Degree College, which is situated in Lucknow. It gives immense pleasure to discuss business model canvas today's topic for online session. So we are going to start our discussion on business model canvas. As we all know that the canvas, when we thought about the canvas is a blank page or the blank white sheet on which you can draw and you can portray your ideas, what you think. When we talk about the business model canvas, तो मतलब है आपके पास अगर आप नई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो या आप ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहे हो और न्यू फॉर्म दे जाओ तो आपके पास एक मॉडल होगा आपके बिजनेस का और जब तक आप बात नहीं करते हो उसको उसे एक्सप्लेन नहीं करते यू itself don't know कि उसमें क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं तो बिजनेस मॉडल कैनवस हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम उसकी हर एक डिटेल को एक्सप्लेन कर पाए अगर कोई कहे आपसे कि आप अपना बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करो तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे और अगर हम खुद अपने लिए भी चाहते हैं कि हम आगे ग्रो करें तो हम अपने बिजनेस मॉडल को किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स पे डिवाइड करके अपने स्ट्रेंथ और अपने थ्रेड्स और अपने वीकनेसेस को जान सकते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ बिजनेस मॉडल। अ बिजनेस मॉडल डिस्क्राइब्स द रैशनल ऑफ हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट्स, delivers and captures values. Create means how much creative you are in your field. Means if you are running a business, only the creative ideas of the related product ठीक है तो आपका जो क्रिएटिविटी है जो इनोवेशन है वो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में अदर प्रोडक्ट्स या सर्विस से अलग अलग डिस्टिंग्विशली रिप्रेजेंट करता है फिर हम उस प्रोडक्ट को अल्टीमेटली प्रोड्यूस कर रहे हैं चाहे प्रोडक्ट या सर्विस वो कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं हाउ वी आर गोइंग टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट और सर्विस टू द कस्टमर एंड देन इट हैज द वैल्यू एवरी कस्टमर इज वेरी वेरी मच वैल्यूबल चाहे वो पोटेंशियल कस्टमर हो चाहे वो करंट कस्टमर हो
या फिर हमारा रेगुलर कस्टमर हो, जिसको हम कस्टमर बेस भी कहते हैं या हम अपने लॉयल कस्टमर्स भी कहते हैं। जो ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स हैं वो नहीं टूटने चाहिए, यानी कस्टमर स्विच नहीं करने चाहिए दूसरे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे। जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर है या फ्यूचर में हो सकते हैं, हम उन्हें कितने ज्यादा एंगेज कर लें कि वो हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को ही प्रेफरेंस दे अदर पर, और जो अभी है वो मेंटेन रहना चाहिए। सो द नेक्स्ट, there are 9 building blocks in the business model canvas. Number one, key partnership, key activities, value proposition, customers relations, customer segmentation, key resource, channels, cost structure, revenue stream. There are 9 building blocks. ये बिल्कुल उस तरह से हैं जैसे कि हम डे टू डे एक्टिविटी को अगर बहुत ही स्टैंडर्डाइज वे में करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली उसको एक बोर्ड पर एक्टिविटी को कि हमें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, जो नोट्स होते हैं ना उसे पिन अप कर देते हैं, और उसके बाद उस एक्टिविटी का एक चार्ट बनकर तैयार होता है कि हमें चेकलिस्ट बना लेते हैं, ये हो गया, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। बिल्कुल उसी तरह के ये 9 ब्लॉक्स हैं जिन पर काम किया जाता है, जिनको नोट डाउन किया जाता है। तो नेक्स्ट हम सबसे पहली चीज जो डिस्कस करेंगे वो ये है कस्टमर सेगमेंट्स। अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए इसमें है मास मार्केट, निश मार्केट, सेगमेंटेड, डाइवर्सिफाइड, मल्टी साइडेड मार्केट। इसका ये मतलब है कि हम जो भी प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हम किन कस्टमर्स को अपने माइंड में रखकर उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब कस्टमर जो है वो, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आईफोन है, आईफोन को आप देखें तो सबसे पहली बात जो एप्पल है उसने अपने आईफोन को मोबाइल बोलते ही नहीं है, वो आईफोन बोलते हैं। उसके बाद उनका बिल्कुल भी ये एम नहीं है कि उनका कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो, वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि उनका जो भी प्रोडक्ट है वो सिर्फ उन लोगों के पास ही हो जिनका एक स्टेटस है इकोनॉमी, वो हमारी सोसाइटी में एक स्पेसिफिक स्टेटस से लो के लिए वो प्रोडक्शन ही नहीं करते। तो उन्हीं ने अपना पहले ही कस्टमर सेगमेंटेशन कर लिया है कि हम किन कस्टमर्स के लिए ये सर्विस अवेल कर रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसी तरह जैसे टाटा ने नैनो कार लॉन्च की थी, तो नैनो को पहले सोचा गया था हम किन तरह के कस्टमर्स को ये प्रोडक्शन को किस तरह के कस्टमर बेस के लिए प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे उसका नाम ही रखा गया, लग तक किया, उसको कहा ही गया कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए लॉन्च की जा रही है या लोअर इनकम ग्रुप के लिए जो एक 2 व्हीलर आती है अच्छी रेंज में, उस रेंज में एक 4 व्हीलर लॉन्च की गई। तो उन्हीं ने अपने कस्टमर बेस को पहले ही तैयार माइंड में रखा और उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन किया। तो कस्टमर सेगमेंटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल कैनवस, कि हमें पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हमारा कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होगा, हम किन कस्टमर्स के लिए प्रोडक्शन करने जा रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज वैल्यू प्रोपोजिशन विच इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये डिफाइन करता है कि जो हमारा प्रोडक्ट और हमारी सर्विस है उसका यूएसपी क्या है, हमारे वो दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे सर्विस से क्यों अलग है। जैसे इस टाइम है, ये वेबिनार्स बहुत जगह हो रहे होंगे, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे होंगे, बट कुछ ही लोग हैं जो जो ये वेबिनार अटेंड करेंगे। तो इससे उनका वैल्यू एडिशन क्या होगा, क्या इंटरेस्ट है इसमें, क्या नई चीज है, क्या चीज ऐसी बताई जा रही है जो उनका वैल्यू एडिशन करेगा। तो जिसमें आता है न्यूनेस है, परफॉर्मेंस है, कस्टमाइजेशन है कि हम कस्टमाइज करके देते हैं, गेटिंग द जॉब डन है, डिजाइन है, ब्रांड है, स्टेटस है, प्राइस है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही लो रेंज में अवेलेबल करवाता है। जैसे आप देखें ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मीशो है, जो जाना जाता है लोएस्ट रेंज में आप प्रोडक्ट को ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ब्रांड के लिए जाना है, मिंत्रा है, आपको ब्रांड के लिए जाना है, अमेजोन है, अमेजोन पे हर चीज की रेंज मिलती है। तो व्हाई वी आर गोइंग फॉर द अमेजोन, व्हाई वी आर चूजिंग द शॉप्सी, व्हाई वी आर चूजिंग द मीशो। तो पहली उनको वैल्यू प्रोपोजिशन करनी पड़ेगी कि उनकी वैल्यू क्या है, और ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि उनका कस्टमर सेगमेंटेशन क्या होगा, किस कस्टमर के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। अगर लो लेवल इनकम ग्रुप के लिए लॉन्च कर रहे हैं तो उन्हें जो अपने प्राइसेस है वो बहुत लो रखने पड़ेंगे। अगर बहुत हाई इनकम ग्रुप के लिए लॉन्च कर रहे हैं तो उनको प्राइसेस के साथ साथ उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी बहुत हाई करना पड़ेगा, उनको एक्सपेक्टेशन के साथ मैच करना पड़ेगा, और उनको एक स्टैंडर्ड या स्टेटस प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज चैनल्स। चैनल्स का मतलब ये होता है कि हाउ वी आर
डिलीवरिंग आर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, हम किस तरह से कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, विच चैनल्स के थ्रू। जब पहले बहुत पढ़ाई जब होती थी तो उसमें वेयर हाउसेज आते थे, होलसेलर एंड रिटेलर ओनली, बट अब हम देखें तो वर्चुअल बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं या सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम बात करें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो, शॉप्सी, ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली प्रोड्यूसर से कस्टमर तक या डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर तक लॉन्च किया जाता है। तो पहले हमें ये अपने आप को ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे लिए बेस्ट चैनल्स क्या हैं। जब हम ये देखेंगे, मान लीजिए अभी हम बिजनेस रन कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे अभी हम कौन से चैनल्स के थ्रू डिलीवर कर रहे हैं। तो उसमें हम ये देख सकते हैं, जब हम इसको नोट डाउन करेंगे, अलग से कैटेगराइज करेंगे, देन वी कैन फाउंड कि जो हम कर रहे हैं क्या वो रिलेवेंट है। अगर रिलेवेंट नहीं है तो क्या उसमें कुछ चेंजेस चाहिए। मान लीजिए अगर ऑफलाइन ही कर रहे हैं तो क्या ऑनलाइन के बिना हम उतना अपना रेवेन्यू जो हमारा एक्सपेक्टेड है वो जनरेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो हम अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, और ये जब भी होगा जब हम अपना बिजनेस मॉडल कैनवस को प्रिपेयर करें। द नेक्स्ट थिंग इज कस्टमर रिलेशनशिप। देखिए कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है कि वो चाहे तो गुड्स और सर्विसेज अलग जगह से भी परचेज कर सकता है या अवेल कर सकता है। तो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप, वो भी वो कस्टमर्स जो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमारे फ्यूचर कस्टमर्स हो सकते हैं, हमारे करंट कस्टमर्स हैं, या हम इन फ्यूचर भी करंट कस्टमर्स को मेंटेन रखना चाहते हैं। तो कस्टमर रिलेशनशिप बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए हम बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च करते हैं, इसीलिए हम टाइम टू टाइम अपने जो करंट कस्टमर बेस है उसको इंटीमेशन देते हैं कि अब हमारा न्यू प्रोडक्ट आया है। आप देख लें कितना जबरदस्त काम होता है इस पर कि जब भी हम कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाकर अपने इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट का प्रोडक्ट है, हम उसे कभी एक बार सर्च भी कर लें, फिर देखिए उस ईमेल आईडी से आप जहां जहां भी लिंक होंगे, फेसबुक चला रहे हैं, आप कोई और आईडी चला रहे हैं, साइड में जो भी पॉपअप्स में एड्स आएंगे उससे ही रिलेटेड आते हैं। यानी वो आपको याद रखते हैं कि आपने ये सर्च किया था, आपने इसको अपने विश लिस्ट में डाला था, आपने इसको अपने लाइक में डाला था, लाइक प्रोडक्ट में डाला था, और वो रिमाइंडर भेजते हैं कि ऐसा तो नहीं आप भूल गए, और वो याद रखते हैं। और उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट आपने परचेज कर लिया है तो वो आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं, ताकि हमारा रिलेशनशिप यानी जो प्रोड्यूसर और जो कस्टमर का रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो। और हर कस्टमर हर कैटेगरी का होता है, जैसे कि पहले बात कर चुके हैं कस्टमर सेगमेंटेशन की। तो अगर हम वेरियस कस्टमर सेगमेंटेशन के साथ अपना बिजनेस कर रहे हैं तो हम अकॉर्डिंगली अलग अलग कस्टमर्स की कैटेगरी वाइज अपना रिलेशनशिप बनाएंगे। तो देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है कि हम पर्सनल असिस्टेंस कितना दे पाते हैं, डेडिकेटेड पर्सनल असिस्टेंस किसी स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट को देना है, सेल्फ सर्विस देते हैं, ऑटोमेटेड सर्विस देते हैं, कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम करते हैं, और को क्रिएशन करते रहते हैं। तो ये है हमारा जो फोर्थ इसका पार्ट है, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप। द नेक्स्ट थिंग इज रेवेन्यू स्ट्रीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर तक डिलीवर कर रहे हैं उसका मेन एम तो ये है कि प्रॉफिट अर्न करना, जैसे आप जान सकते हैं हर बिजनेस एंटिटी का होता है। तो इसमें ये है कि जो भी प्रोडक्ट सर्विस हम डिलीवर कर रहे हैं, जिस भी मीडियम से कर रहे हैं, या हमारा एक बिजनेस है या दो बिजनेस है, एक बिजनेस है तो उसके कितने सारे ब्रांचेस हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें किस किस स्कीम से हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। यानी वी आर गेटिंग फंड्स और वी आर गेटिंग रेवेन्यूज इन फॉर्म ऑफ कैश फ्रॉम दैट सेगमेंट। ठीक है, और हर कस्टमर सेगमेंट से जो हमारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे कि हमारी, जैसे आपने कैनवस बना लिया, आपके पास तैयार हो गया और हमें पता हो गया कि हमारे इस कस्टमर सेगमेंट से हमारा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है, इससे कम जनरेट हो रहा है। तो जिस भी कस्टमर सेगमेंट से हमारा रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो रहा है, हम उसमें उस जो लेवल है हमें मेंटेन करना है, ये हम डिसाइड करेंगे। और अगर कोई कस्टमर सेगमेंट ऐसा है जिसको हम कवर तो कर रहे हैं, अगर उससे हमारे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, तो जब हम इसे नोट डाउन कर लेंगे, जब हम उसे अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, देन वी कम टू नो कि हमारी क्या वीकनेसेस है, कि वो कस्टमर जो का जो सेगमेंट है हमारे एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज को क्यों नहीं मैच कर पा रहे हैं। क्या उनकी एक्सपेक्टेशन पे हम नहीं उतर रहे हैं सही, या हमारे प्राइसेस उनको सूट नहीं कर रहे हैं, या हमारी क्वालिटी से वो सेटिस्फाइड नहीं है।
ये जब ही पॉसिबल है जब हम प्रॉपर इसको नोट डाउन करेंगे और रेवेन्यू स्ट्रीम में इसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारे रेवेन्यूज पर जो जहां से अच्छा हमारे रेवेन्यूज आ रहे हैं हम उस पर मेंटेन रखेंगे, उसको स्टेबलाइज कर सकेंगे और उसे मेंटेन रखने के लिए भी जो कॉम्पिटिटर्स है कि वो क्या कर रहे हैं हम उसे अपडेट करेंगे। और जहां से हमारे रेवेन्यूज कम हो रहे हैं हम वहां क्या करेंगे, हम वो रीजन फाइंड आउट करेंगे और उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे जिस हद तक हम कर सकते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट इज की रिसोर्सेज। This is very much important when we are working in any organization. Resources plays a very vital role in the development and the sustainability of that organization. Means कि जो रिसोर्सेज हैं वही हमारी एसेट्स हैं। रिसोर्सेज मीन्स सपोज एक कॉलेज रन कर रहा है तो वहाँ की फैकल्टी, इवन वहाँ के स्टूडेंट, इवन वहाँ के 4th क्लास एम्प्लॉय भी रोल प्ले करते हैं। अगर वो भी काम ठीक से नहीं करे तो पूरे वर्क ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्किंग स्ट्रक्चर है या जो फ्लो ऑफ वर्क है वो बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है कि हमारे किस रिसोर्सेज क्या है, हमारे बिजनेस में कौन है, हमारे जो जहां से हमारे रेवेन्यू, जहां से हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है वो है, जहां हम प्रोडक्शन कस्टमर्स हैं, या हमारे यहाँ जो काम करने वाले लेबर हैं, जहां से हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं वो है। तो हमारे की रिसोर्सेज क्या है जिन पर बेस करके हम प्लान बना रहे हैं उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर 4 कैटेगरीज हैं जिनमें हम अपने की रिसोर्सेज को कैटेगराइज। नंबर 1 इज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल। तो 4 ये चारों कैटेगरीज में जो भी रिसोर्सेज आ रहे हैं, हम अगर हमारा ऑलरेडी रनिंग बिजनेस है तो हम उसे नोट डाउन करेंगे, उसमें से फाइंड आउट करेंगे कि किन पर हम अच्छा काम कर रहे हैं और कहाँ पर लैकिंग है, हम उसे इम्प्रूव करेंगे। अगर हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो पहले से हमें देखना है कि हमें की रिसोर्सेज यानी वो रिसोर्सेज कहाँ से अरेंज करना है, कहाँ से कलेक्ट करना है, हम किस तरह का इंटेलेक्चुअल वर्क चाहते हैं तो हम उस तरह की चॉइस को में हमारा क्या की रिसोर्स में बिल्डिंग की लोकेशन बहुत अच्छी होगी, हमारे पास कंप्यूटर्स होंगे, किस कैटेगरी के होंगे, हमें लैपटॉप चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स का मतलब हमारे जो पर्सनल होंगे वो कहाँ से एम्प्लॉय करेंगे, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उनकी सॉफ्ट स्किल क्या होनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनेंशियल। फिनेंस के बिना तो बिजनेस रन करना बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है। तो हम कहाँ से अपने फिनेंस का अरेंजमेंट करेंगे, जब भी हमें जरूरत होगी पैसे से हम कहाँ से लेंगे। तो हमें ये सब देखना पड़ेगा और की रिसोर्सेज जब इसे नोट डाउन करेंगे, यानी हम जब बिजनेस मॉडल कैनवस बनाएंगे तो इसे बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन भी कर पाएंगे अगर हम किसी और के आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर हमें अपने खुद भी बिजनेस को समझना है तो हम बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज की एक्टिविटीज। अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे वो प्लानिंग भी कर रहे थे कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। कभी कभी हम प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है बट हम कर नहीं पा रहे हैं। तो की एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी क्या करने जा रही है, बिजनेस मॉडल जो बनाया है हमने उसको वर्किंग में लाने के लिए। तो जैसे हम लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम डाइटिंग करेंगे, हम एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग रूटीन अच्छा होगा, हमारी इवनिंग अच्छी होगी, बट हम उससे प्लानिंग कितनी भी अच्छी कर लें, प्लानिंग का मतलब है हाँ ठीक है अगर वो एग्जीक्यूट हो पाई तब तो बेनिफिशियल है, अदरवाइज नहीं है। तो हमें ये भी देखना है जब हम प्लान कर रहे हैं तो हमारी फिजिबिलिटी क्या है। अगर हमें एक मैनेजर चाहिए है तो हम अगर अप्रोच कर रहे हैं आईआईएम से पास आउट एमबीए स्टूडेंट को जो बहुत अच्छा मैनेजर होगा, बट शायद हमारी कंपनी अभी बहुत स्टार्टिंग पोजीशन पे है, हम उसको इतना पे नहीं कर पाएंगे। वो भी क्यों हमारी कंपनी के साथ काम करना चाहेगा अगर उसका बैनर बड़ा नहीं है, वो उसको उसकी भी एक रिपुटेशन है। तो हमें ये मैच करना पड़ेगा कि हम क्या अपने लिए बार सेट कर रहे हैं और क्या वो फिजिबिलिटी है, फिजिबिलिटी देखेंगे उसको मैच करेंगे। तो की एक्टिविटीज के अंदर वो आएंगी जो एक्चुअली हम करेंगे बिजनेस के अंदर। अगर हम बिजनेस प्लान कर रहे हैं, स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, और अगर हम कर रहे हैं तो अभी इस टाइम हम क्या करने की पोजीशन में। तो इसके अंदर जो आता है दैट इज प्रोडक्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्लेटफॉर्म एंड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग आपके जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही आपकी पर्सनल लाइफ हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, हम कितना दूसरे से कनेक्ट हैं। आप देखें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये पर्सनल लाइफ, जो लोग पर्सनल वीडियोस डालते हैं, पर्सनल फोटोज डालते हैं, कितने फॉलोवर्स हैं, कितने लाइक हैं। इसके साथ साथ बिजनेस के लिए भी देखें पेजेस होते हैं, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, ये डिसाइड करेगा कि एक्चुअली वो कितने पोटेंशियल कस्टमर को करंट कस्टमर में
या रियल कस्टमर्स में चेंज कर पाएंगे। तो नेटवर्किंग या किस और जितने प्लेटफॉर्म्स को हम कवर करेंगे, जैसे हम ऑफलाइन भी कर रहे हैं, हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो हम जितनी ज्यादा एक्टिविटीज को कर पाएंगे, हमारे बिजनेस मॉडल का सक्सेसफुल होना उतना ज्यादा क्लोज होता जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट स्ट्रक्चर। कॉस्ट, जैसे कि फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें देखना है कि अगर हम फ्यूचर में जा रहे हैं बिजनेस करने, तो हमारा मेजर कॉस्ट का सेगमेंटेशन क्या होगा, हम कॉस्ट को किस तरह से कैटेगराइज करेंगे, मींस कॉस्ट कहाँ से आ रही है, जो कॉस्ट हम अकर कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है। तो कॉस्ट का जो हम कहें कि कैटेगरीज हैं, तो वो बेसिकली कैटेगरीज, जो बेसिक कैटेगरीज है, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हमने एक बार कर दी, हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते, जो कर दी वो कर दी, और वो पर यूनिट आउटपुट चेंज भी नहीं होगी। यानी फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है अप टू अ वेरी लॉन्ग रन, कह सकते हैं, जब तक हम अपना स्केल ना चेंज कर ले, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट होती है, जितना प्रोडक्शन हम करेंगे हर यूनिट के प्रोडक्शन के साथ वो कॉस्ट अकर होती जाएगी। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है हमारी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो ये पहला जो है बाइफर्केशन है कॉस्ट का। नेक्स्ट जो बाइफर्केशन होता है वो होता है इकोनॉमिक कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट में हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर करते हैं, और जो कि हमें करना भी चाहिए। सपोज आई एम एन एंटरप्रेन्योर, हम एक एंटरप्रेन्योर है और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम उस टाइम हम एंटरप्रेन्योर नहीं होते और कहीं पर्सनली एम्प्लॉय होते, तो हमें क्या सैलरी मिल रही होती। तो हमें हमेशा हर काम को करने से पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कंसीडर करना होता है, और जब भी हम दो अल्टरनेटिव में से एक चूज करते हैं, तो वही अल्टरनेटिव हम चूज करते हैं जहां हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हो, ठीक है। जो ये कॉस्ट होती है, हमें पहले से ही सोच लेना है कि अगर कल को हमारा बिजनेस अच्छा रन करेगा, हमारा स्केल चेंज हो जाएगा, यानी हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री या लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने लगेंगे, तो हमारी कॉस्ट तो बढ़ेगी, साथ में हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलने लगते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप भी मिलने लगता है। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कॉम्पनसेट होने लगती है। तो जब हम बिजनेस प्लान बना रहे हैं, तभी ना सिर्फ हमें सोचना है, क्योंकि सोच कर कितनी चीजें याद रखेंगे, हमें सिर्फ कैनवस पर जैसे पोर्ट्रे करते हैं ना, वैसे लिख कर भी रखना है। और जब हम एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वे में, चाहे वो हम अपने लिए ही कर रहे हो, जब हम ये लिख लेते हैं तो हमारे लिए भी बहुत आसान हो जाता है। और अगर हमारे पास बहुत अच्छा आइडिया है, बिजनेस आइडिया, हमने बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल कैनवस बना रखा है, और हम किसी भी इन्वेस्टर को ढूंढना चाहें, तो हमें इन्वेस्टर भी बहुत आसानी से मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने पॉइंट्स को उनके साथ बहुत अच्छे से डिफेंड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो 9th था कॉस्ट स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो हमारा बिजनेस मॉडल कैनवस है वो इन 9 पिलर्स पे लिखा हुआ है। अब आप देखें, एक हमारा जो ये दिख रहा है, आप चाहें जिसमें अगर हम में से कोई भी, जो भी ऑडियंस है इसमें से कोई एंटरप्रेन्योर है जो इस टाइम काम कर रहा है, तो वो अपने बिजनेस मॉडल को इस तरह से अगर इतने जगहों पर इन 9 कैटेगरीज में अलग अलग उसके पार्ट लिख सकता है, तो वो लिख ले, ताकि हम वो अपने बिजनेस को भी अच्छा समझ सके, अपने हमने स्वॉट एनालिसिस जिस तरह से पढ़ी है वो अपने बिजनेस के लिए रन कर सके, स्ट्रेंथ देख सके, वीकनेसेस देख सके, और उसके बाद वो अकॉर्डिंगली उसको कर सके। सो आई होप दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much, ma'am, for enlightening us with your innovative session. Now, थैंक I यू सो request our Honorable Principal, ma'am, to address the session with your kind words. Ma'am, please. Principal ma'am, please address the session. Hello.
आप लोग सुन पा रहे हैं? हेलो, यस मैम, आवाज आ रही। यस मैम, यस म्यूट कर दो। ओके, थैंक यू महिमा फॉर एड्रेसिंग मी। आज के इस वेबिनार में जो हमारे इंटरप्रेन्योर पर आधारित आईआईएस पर जिसका टॉपिक है बिजनेस मॉडल कैनवास, जिसकी आज की हमारी मुख्य वक्ता थी डॉक्टर जिया अफरोज, गुरु नानक गर्ल्स डिग्री कॉलेज लखनऊ से असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स। आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे इस वेबिनार में, और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स, हमारे सभी प्राध्यापक बंधु एवं प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस वेबिनार के माध्यम से आप जुड़े और इस बिजनेस और इंटरप्रेन्योरशिप के इस सत्र में आपने बहुत सी सूक्ष्मताएं जानी, जो बिजनेस की बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, जिनसे एक बिजनेस कैसे फेल्योर हो सकता है और कैसे सक्सेस हो सकता है, ये सब चीजें आपने जानी। जिसमें से मुख्य है आपका वैल्यू प्रोडक्शन, और आपका जो ह्यूमन बीइंग है। सबसे पहले जो आपका स्टार्टअप जो शुरू होता है, उसमें क्या क्या आइडियाज होने चाहिए, कैसे प्रोडक्शन लेना चाहिए, कैसे हमारा उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और कैसे उसको हम आगे बढ़ाएं, उसमें क्या क्या हमारे मानव संसाधन हो, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, क्या क्या फाइनेंशियल की हमारी कमियां हो सकती है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता। इन सब चीजों को डॉक्टर जी अफरोज ने बहुत ही विस्तार से बताया। आशा है कि आप लोग यदि स्टार्टअप से जुड़ेंगे या कभी इसमें आगे आएंगे, तो ये सब बहुमूल्य विचार आपके काम आएंगे। तो इन विचारों से सीख लेते हुए आप अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाएं और बहुत कुछ सीखें, और अपने इकोनॉमिक आगे बढ़ाएं, आर्थिक रूप से आप स्वतंत्र हों और सक्षम हो, ताकि अपने आप पाँवों पर, जैसा कि कहा जाता है हमारी भारतीय संस्कृति में, अपने पाँवों पर खड़े हो सके और आर्थिक रूप से किसी पर डिपेंड ना रहे, अपने आप को सशक्त बनाए और अपने देश को भी इसके साथ साथ सशक्त बनाए। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for inspiring us with your speech. Now, I would like to invite IIC President Mrs. Gausia Nab, ma'am, to give vote of thanks. Thank you, Mahima. Firstly, I pay my regards to Dr. Zia Afroz, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Thank you so much, ma'am, for giving such an opportunity. Okay, you're most welcome, ma'am. You have very well discussed and very wonderfully discussed about the 9 building blocks, how to customize the product and services, find out the key resources like physical, intellectual, human, and financial resources. In short, we can say that by making a business model canvas, one can find all the process at a single place. With the help of that, one can analyze the business and promote their business. So, on behalf of the organization, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed guest and speaker, Dr. Zia Afroz ma'am, for accepting our invitation on such a short notice and blessed our students with her wonderful presentation on business model canvas. Thank you so much, ma'am, for being here with us. Thank you, sir. I thank our chief guest and the principal of this college for always supporting and guiding us in every program. Thank you so much, ma'am. I thank today's event coordinator, Dr. Saloni Bhasin ma'am and Dr. Sneha Singh ma'am for organizing such a best program in spite of their continuous business in the examination. Thank you both of you, ma'am. Thank you, ma'am. I would like to express my appreciation to everyone who worked on this event. I would like to thank all the IIC council members and the faculty members
Dr. Preeti Tiwari ma'am, Dr. Ram Darshan sir, Dr. Pushpendra Singh, Mrs. Shalini Kanojia ma'am, Mrs. Shikha Maurya ma'am, Dr. Richa Singh ma'am, Mrs. Priyanka ma'am, and Dr. Sarika ma'am for their cooperation. Thanks to all of you. I thanks to Ms. Mahima Sonkar for hosting the program in such a good way. Thank you, Beta, and best of luck for the future. I would like to thanks every one of you who presents on this online platform for giving your precious time. Thank you, everyone. Thank you. Mahima Sonkar is there? महिमा ओके तो आज के इस वेबिनार को हम प्रिंसिपल मैम की परमिशन से यहीं पे एंड अप करना चाहेंगे मैम Thank you so much, Dr. Zia Froze, and all the members of IIC Council, our Honorable Principal Ma'am, and our dear students. Thank you for your presence in the webinar. Thank you so much. Thank you, ma'am.